Morning students. Today we will study concave lens. Today we will do the image formation in case of concave lens. Before we will study the rules of image formation, and of course we will define principal focus and focal length of concave lens. In fact, this is the last portion except sign convention left in light. Refraction of light, chapter number 5. Okay. Now, which lens was converging? Convex lens. Why convex lens was converging lens? Because all those rays of light which are parallel to principal axis in convex lens, after refraction from the lens, converge at a point on principal axis. Convex lens are converging. At the same time, concave lens is diverging lens. Why concave lens is diverging lens? I am going to discuss, but the heading will be principal focus and focal length of a concave lens. First of all, we should know how could we define the principal focus of a concave lens. What is the meaning of principal focus of a concave lens? Let us see. What is concave lens? How could we define concave lens? A spherical lens which is thinner at the middle and thicker at the edge is called concave lens. है ना? Now listen. Is this a concave lens? Okay. This is a concave lens. Middle portion is thinner compared to edge. Its edge is thicker as compared to its middle portion. Listen carefully. This line is representing principal axis. This is optical center, and this line is representing principal axis. Okay. Now we are going to define principal focus of concave lens. Listen carefully. The same concept. Suppose from a source of light, a parallel beam of light are incidenting on the lens. These ray of light are parallel to principal axis. Now listen. देखो सोर्स ऑफ लाइट से इस तरह ये सभी रे ऑफ लाइट आ रहा है. ये सभी रे ऑफ लाइट पैरेलल है एक दूसरे के, और ये सभी किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के. दिस पैरेलल इनफिनाइट बीम ऑफ लाइट है इंसिडेंटिंग ऑन कॉन्केव लेंस. नाउ व्हाट विल हैपन? अगर कॉन्वेक्स लेंस होता, याद करो, और कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट था, ये इंसिडेंट क्या, ये कन्वर्ज कर रहा था फोकस पे. ये बात याद आ रहा है ना? ये पॉइंट को हम क्या बोलते थे? फोकस. ओरिजिनल कन्वर्जिंग हुआ था, फोकस रियल था. अब क्या होगा? अब ये क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो ये सामने की ओर जैसा ही कॉन्केवेक्स लेंस से होता था ऐसा कॉन्केव लेंस में नहीं होगा. मतलब कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा. ओके. तो क्या होगा? तो ये सभी पैरेलल रे ऑफ लाइट जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज करेगा. मतलब उसका स्प्रेडिंग होगा. किस तरह? रैंडम वे नहीं. ध्यान से देखो. प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के पे एक पॉइंट है. लेंस के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट है. ये सभी रे ऑफ लाइट वर्चुअली प्रतीत हो रहा है इसी पॉइंट से आता होगा. कई बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? देखो मेरी बात को समझो, फिर से हम समझा रहे हैं. इसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस. ये पॉइंट क्या है? फोकस. देखो ध्यान से सुनो. वो सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्केव लेंस के केस में, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज करता, वो दूर जाता, वो स्प्रेड हो रहा, इस तरह स्प्रेड हो रहा कि वो वर्चुअली अपीयर हो रहा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है लेंस के पीछे, उस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा, वर्चुअली प्रतीत हो रहा. उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस. ध्यान से सुनो. हाउ टू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस? You can say it as all those rays of light which are parallel to principal axis in concave lens after refraction from the lens diverges and they appears to coming from a point on principal axis behind the lens. That point is called principal focus, and the distance between optical center and focus is called focal length represented by a small h. समझ में आई बात? क्या होगा फोकस? ध्यान से देखो, एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से देखना. ये कॉन्केव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना. क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज करेगा तो ये दूर जाएगा. ये दूर जाएगा किस तरफ? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है पीछे की ओर. ये सभी रे ऑफ लाइट इसी पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. अब फिर से वही बात. कॉन्केव लेंस क्या है? लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता, तो सोर्स ऑफ लाइट लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी. अब मानो सोर्स ऑफ लाइट से कुछ रे ऑफ लाइट इस तरह आ रहा है, क्या ये भी पैरेलल है ना? ये भी डाइवर्ज करेगा. किस तरह? रैंडम वे में नहीं. प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये सभी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा है. ये डाइवर्ज कर रहा है, लग रहा है इस पॉइंट से आता हुआ. तो एक लेंस का भी हमेशा लेंस का दो फोकस होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस. लेकिन
एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकस उसके सामने लाई करता, लेकिन कॉन्केव लेंस का फोकस उसके पीछे लाई करता, ये डिफरेंस है ना। ये इंसिडेंट रे है तो इसका फोकस इधर है, अगर ये इंसिडेंट रहता तो इसका फोकस इधर रहता, हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का फोकस सामने की ओर होता। ये बात समझ में आया? तो कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है? क्योंकि ये लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा, ये कौन सा लेंस होगा? डाइवर्जिंग लेंस। विच लेंस is diverging, concave or convex? Concave lens. Why concave lens is diverging? Because all those rays of light which are parallel to principal axis in concave lens after refraction from the lens spread or diverges. How? From a point on principal axis behind the lens, and that point is called principal focus, and the distance between optical center and focus is called focal length. तो अब तक क्या क्या बात समझ में आया? देखो हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर पाएंगे, आप फोकल लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये देख पा रहे हैं अब तक कि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, और ये भी अंडरस्टूड सा बात है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता था क्योंकि लाइट रे ओरिजिनली कन्वर्ज कर रहा था फोकस पे। कॉन्केव लेंस का फोकस रियल होगा या वर्चुअल? और कॉन्केव लेंस है वर्चुअल फोकस। क्यों इसका फोकस वर्चुअल है? देखो ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ये इस तरह डाइवर्ज हो रहा इस पॉइंट से। ओरिजिनली तो लाइट इस पास से चला गया ना, ये वर्चुअली एपियर हो रहा है ना। क्या लाइट ओरिजिनली फोकस से डाइवर्ज कर रहा है? नहीं, वो फोकस से डाइवर्ज करता हुआ एपियर हो रहा है, जैसा कॉन्वेक्स मिरर में होता था। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या था? वर्चुअल। कॉन्केव लेंस का फोकस क्या होगा? वर्चुअल। हम क्यों वर्चुअल फोकस बोल रहे हैं? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो फोकस से ओरिजिनली पास नहीं कर रहा, वो फोकस से एपियर हो रहा, वो वर्चुअली एपियर हो रहा डाइवर्ज होता हुआ। इस फोकस को हम कौन सा फोकस बोलेंगे? वर्चुअल फोकस। और लास्टली द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आया? तो हाउ कुड यू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस? यू कैन से इट एज all those rays of light which are parallel to principal axis in concave lens after refraction from the lens diverges and they appears to coming from a point on principal axis behind the lens, and that point is called principal focus. The distance between optical center and focus is called focal length. ये दोनों बात समझ में आया? नोट्स में लिखा गया है, देखो ध्यान से। फिर थर्ड, विच लेंस इज डाइवर्जिंग? और कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। वाई कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग? पॉइंट नंबर 1 इसका आंसर होगा, है ना। जो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन, इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर और कॉन्केव लेंस है वर्चुअल फोकस। वाई, इसका मतलब समझ में आया ना, क्यों कॉन्केव लेंस के फोकस को हम वर्चुअल बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट रे ओरिजिनली फोकस पे कन्वर्ज, ऑरिजिनली फोकस से डाइवर्ज नहीं कर रहा, वो एपियर हो रहा डाइवर्ज करता हुआ, ओरिजिनली वो फोकस से पास नहीं कर रहा। इसका फोकस कौन सा फोकस होगा? वर्चुअल। और हमेशा हम ये साइन कन्वेंशन में देखेंगे कॉन्केव लेंस का फोकस फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? बोलो, वर्चुअल। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कन्वेंशन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? तुम बोलेगा सर दो फोकस है, ये भी और ये भी, लेकिन तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस रे ऑफ लाइट के क्या फोकस है। अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, इसका फोकस ये होगा या ये? इसका फोकस ये होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट इससे डाइवर्ज कर रहा है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, हम उसका अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं ना। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। दो फोकस होने के बावजूद भी हम इस रे ऑफ लाइट के इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो इस फोकस से डाइवर्ज किया इसलिए। और लेकिन वही कॉन्वेक्स लेंस के केस से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हम साइन कन्वेंशन या डिटेल्स में इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वर्चुअल फोकस है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, डाइवर्जिंग लेंस है, फोकस को हम डिफाइन कर पा फोकल लेंथ, बस इतना ही यहाँ पे समझना। अब आगे, अब इमेज फॉर्मेशन करना तो हमको रूल पता होना चाहिए। तो हम तीनों रूल को भाई देख रहे हैं कॉन्केव लेंस में कि रूल क्या क्या है इमेज फॉर्मेशन का। तो हेडिंग होगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन किसमें पढ़ रहे हैं? तो कॉन्केव लेंस में। हेडिंग है ना कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब ध्यान से देखना रूल्स क्या है। फिर से यहाँ पे 3 रूल्स है। रूल 1, देखो फिर से वही बनाएंगे कैसे? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ना, इक्वल डिस्टेंस पे, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे, ना तो इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा गलत बनेगा। इक्वल डिस्टेंस पे ये डायग्राम बनाने के बाद F 2F F और 2F कट करो। हम बता चुके 2F क्यों बोलते हैं, बता रहे फिर से। ये F है, ये ट्वाइट ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकस, ये ट्वाइस फोकल लेंथ, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल एक्स। देखो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोले, हम इसको इतना ही एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। देखो रूल 1 क्या होगा? रूल 1 काफी सिंपल है। और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, भी तुरंत बताया गया। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस पे इंसिडेंट करने का रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज करेगा, वो प्रतीत होगा फोकस से आता हुआ, वो वर्चुअली एपियर होगा फोकस से आता हुआ। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये दूर जाएगा। किस तरह? ये प्रतीत हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? फोकस से। क्या रूल समझ में आया?
What is the rule 1 of image formation concave lens? You can say it as a ray of light parallel to principal axis in concave lens. क्या ये ray of light parallel है principal axis के? रिफ्रैक्शन के बाद ये दूर जा रहा, लेकिन ये प्रतीत हुआ वर्चुअली फोकस से आता हुआ. A ray of light, you can state it as the rule 1 of image formation concave lens can be stated as a ray of light parallel to principal axis in concave lens after refraction from the lens diverges and they appears to coming from focus, है ना. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज करेगा और वो प्रतीत होगा फोकस से आता हुआ. ओके, ये क्लियर है. रूल 2 देखो, ये रूल समझना काफ़ी आसान है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी. ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में बस इंसिडेंट रे बना के छोड़ दिया, तुमको बोलेगा ट्रेस द रिफ्रैक्टेड रे, तो तुमको रूल पता रहना चाहिए. और इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन भी तुम इसी के बेसिस पे करते हैं. रूल 2 सेम है. क्या हम पढ़े रूल 2 इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में? क्या याद आ रहा? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज स्ट्रेट. वो रूल यहाँ पे भी सेम ही है. क्या है रूल नंबर 2? अब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास कर रहा है. ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, माना ये रे ऑफ लाइट का ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है. रिफ्रैक्शन के बाद ये स्ट्रेट चला जाएगा. यहाँ पे हम कोई चेंज पाथ में ऑब्जर्व नहीं करेंगे. ये रूल 2 इमेज फॉर्मेशन का. किसमें? कॉन्केव लेंस में. हम क्या देख पा रहे? अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. मानो इंसिडेंट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा तो ये भी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, ये भी इसी पास से चला जाएगा. तो अगर रे ऑफ लाइट, ऐसा ही क्वेश्चन भी है तुम्हारे बुक में और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेंस का वो कौन सा पॉइंट है जिससे लाइट रे पास करता तो वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता. तो आंसर क्या होगा? अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ऑप्टिकल सेंटर. जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस अगर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रहा हो तो वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो लाइट रे स्ट्रेट चला जाएगा. ओके, ये बात समझ में आया ना. रूल 1 में तुम क्या देख रहा? अगर रे ऑफ लाइट देखो, ये रे ऑफ लाइट, क्या ये रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. ये क्या होगा? डाइवर्ज होगा. ये दूर जाएगा ना. किस तरह? ये वर्चुअली प्रतीत होगा ये फोकस से आ रहा. ये देखो, ये रे ऑफ लाइट इस तरह आया और इस तरह चला गया. ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करा? वर्चुअली ये डाइवर्ज कर रहा है इस पॉइंट से आता हुआ. तो वो सभी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन का डाइवर्ज करेगा और प्रतीत होगा किससे आता हुआ? फोकस से. ये लाइन देखो ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है ना, स्ट्रेटली चला जाएगा. यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करेंगे. इन 2 रूल के हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे. पर यहाँ पे एक रूल और हम लोग के सिलेबस में है, वो है रूल नंबर 3 ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस, जो कन्वर्ट्स होगा किसका? रूल 1 का. और ये समझना काफ़ी जरूरी है. यहाँ पे काफ़ी बच्चे को कन्फ्यूजन भी होता, तो लोग जानबूझ के उसको गलत भी करता. तो इस बात को आप ध्यान से देखो. तो रूल 1 में क्या पढ़ा? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो वर्चुअली किससे प्रतीत हो रहा जाता हुआ? फोकस से. देखो ये रूल यहाँ किस तरह चेंज हो रहा, तुम इस बात को समझो. ये एफ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकस और ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. अब रे ऑफ लाइट वर्चुअली प्रतीत हो रहा फोकस की ओर जाता हुआ. क्या बात सुनो. नाउ इंसिडेंट रे appears to coming toward focus of a concave lens, and if a ray of light, if a incident ray appears to coming to a focus of a concave lens, it will become parallel to principal axis. देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे. ये कॉन्केव लेंस है ना, माना ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है. ओके, ये इंसिडेंट रे है, ये लेंस को इस पॉइंट पे हिट कर रहा, लेकिन ये वर्चुअली प्रतीत हो रहा फोकस की ओर जाता हुआ. अगर रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट रे फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा ना, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा. किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के. ये रूल थे इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव लेंस के केस में, और ये कन्वर्स है रूल 1 का. हम क्या देख पा रहे हैं? अगर रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट रे फोकस की ओर जाता प्रतीत होता तो वो पैरेलल हो जाता. किसके पैरेलल हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के. तो हाउ कुड वी स्टेट रूल नंबर 3 ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव लेंस? बोलो. यू कैन से इट एज a ray of light appears to come toward focus of a concave lens after refraction become parallel to principal axis. Okay. Based on these 3 rules of image formation of concave lens, now we will do the image formation in concave lens. Now listen. Since a concave lens a virtual focus, a concave lens always produces a virtual erect dimness image of an object. Where what should be the position of object? We have studied in convex lens with change in the position of object. The characteristics of image also changes. The image can be magnified, it can be diminished, it can be same size as that of object, or it can be real or virtual. Okay, but in case of concave lens, whatever be the position of object, और कहीं पे भी object को रखो, always the image form will be virtual, it will be erect, it will be diminished. Okay, now listen. तो यहाँ पे एक important question इस तरह बनता है मिरर केस में और या लेंस के केस में,
कि बोर्ड में तुमको सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा तुम अगर ऑसवाल का सैम्पल पेपर या कोई भी बेहतर सैम्पल पेपर देखो तो वहाँ पे यही तुम देख पाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन रहता नेम द मिरर विच ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट डिम्नेस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन फॉर इट। लेंस से पूछा जा सकता है ड्रॉ द लेंस विच ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिम्नेस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ एंड जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ ग्रिड डायग्राम। तो कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिम्निश इमेज फॉर्म करता हूँ? कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस का हमको यहाँ पे कॉन्केव लेंस लिख के उसका इमेज फॉर्मेशन करना, उसके प्रॉपर्टी को हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट पॉइंट है, देखो हम लोग का सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, ये लास्ट है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। 2 क्लास में हम लोग का ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो 2 केस लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मिरर से नज़दीक रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, when object is placed in front of concave lens। समझना बहुत इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन, यही तुम कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस बोला, कॉन्केव मिरर, तो बाकी जो बता, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन है, कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन है, फिर पोल और फोकस के बीच में कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का इमेज फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इमेज फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखो, डायग्राम तुमको भी बनाना पड़ेगा, इतना ही अच्छा। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन करना, तो इक्वल डिस्टेंस पे F2F मार्क किया, F2F मार्क किया, है ना। आप ध्यान से, ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस रखें, माना ये ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्ट है, लेट ए बी द टॉप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बी बी द बॉटम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हैव बीन हेल्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस beyond 2 in this case. Now for image formation, the source of layer for image formation intersection of two refracted light ray required, and we need of course a source of light. Suppose from a source of light, ध्यान से देखो, source of light से लाइट रे ए से पास कर रहा जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा। रूल 1 किस तरह, ये दूर जाएगा, किस तरह, ये वर्चुअली प्रतीत होगा, किससे आता हुआ, फोकस से आता हुआ। क्या ये बात समझ में आया? ए से ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रूल 1 का उपयोग करें तो हम ये बोल सकते हैं कि रे ऑफ लाइट दूर जाएगा, ये वर्चुअली प्रतीत होगा, फोकस से आता हो। रूल नंबर 2 बोलो क्या होगा, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। देखो ये रे ऑफ लाइट क्या ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा, स्ट्रेटली चला गया, क्या इस रिफ्रैक्टेड रे का इस रिफ्रैक्टेड का रियल इंटरसेक्शन हो रहा क्या, डाइवर्जिंग, क्या रियल इमेज का फॉर्मेशन कभी भी होगा, तुम कोई भी पोजीशन लो ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा, तो इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हो रहा है ना, ये इसका वर्चुअल रे है, ये इसका वर्चुअल रे, तो इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे हुआ, ये A डैश है और ये B डैश, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज फॉर्मेशन काफ़ी क्लियर है और काफ़ी सिंपल भी है, आराम से तुमको 3 से 5 4-5 मार्क्स दिलवा देगा बोर्ड में, 3 नंबर तो कम से कम दिलवा देगा। अब देखो प्रॉपर्टी लिखने के लिए, प्रॉपर्टी लिखने के हम क्या क्या लिखते हैं, वही 3 चीज़, क्या क्या, पोजीशन, नेचर और साइज। तो पहला पोजीशन बोलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, यू कैन से इट एज द इमेज इज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो हाउ कुड यू राइट, व्हाट कुड बी द पोजीशन ऑफ अ इमेज, यू कैन राइट इट एज इमेज इज फॉर्म बिटवीन optical center and focus on same side of object. Okay, now listen, what about the nature of image, it is real or virtual, क्या real intersection हुआ है, नहीं, virtually ये meet कर रहा है, इमेज कौन सा होगा, virtual। ऐसे भी जिस तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसी तरफ अगर इमेज का फॉर्मेशन हो, इमेज कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल। और ये इरेक्ट भी है, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। थर्ड में हम क्या बोलेंगे, डिमनेस।
क्यों डिमनेस? बिकॉज हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म हो गया। कुछ करना और इसमें। केस 2, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख देते हैं? इन्फिनिटी पे। बनाओ, कॉपी में बनाओ, सब बन जाएगा। इन्फिनिटी, नाउ द ऑब्जेक्ट हैव बीन हेल्ड एट इन्फिनिटी ऑफ अ कॉन्केव लेंस। देखो लास्ट इमेज फॉर्मेशन है हम लोग का, फिर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना रेनबो में, फिर हमको डायग्राम बनाना ही नहीं बनाना, फिर जनरेटर बनाएंगे, मोटर बनाएंगे, बस वही सब, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और डायग्राम कहाँ है फिजिक्स में है। इक्वल डिस्टेंस पे तुम लेना, मैं इक्वल डिस्टेंस है और ये इनफाइनाइट। ओके, अ पॉइंट वेरी फार अपार्ट फ्रॉम अ मिरर कैन बी कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेंज क्या होगा? नो रेंज। इन्फिनिटी यहाँ क्या जस्टिफाई कर रहा है कि एक पॉइंट जो मिरर से काफ़ी दूर है। तो मानो इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को ए से पैरेलल रे ऑफ लाइट इस तरह आ रहा, बी से ही पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है, इनफैक्ट सभी पोजीशन से पैरेलल रे ऑफ लाइट है। ये सभी रे ऑफ लाइट क्या होगा? डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज? डाइवर्ज। ये प्रतीत होगा ना इस फोकस से आता हुआ, है ना? अब बोलो अब क्या होगा? क्या रियल इंटरसेक्शन हो रहा है? वर्चुअली ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? फोकस पे। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस पे। और ये इसका इमेज फॉर्मेशन, वेयर द इमेज इज फॉर्म, द इमेज हैव बीन फॉर्म एट focus on the same side of the object. वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमनेस, हाईली डिमनेस है, क्योंकि एक पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन, क्योंकि एक पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, मच लेस देन द हाइट ऑफ। खत्म हो गया। यूज बोलो, कॉन्केव लेंस, ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आया ही ना? यही दो इमेज फॉर्मेशन करना है और क्या। यूज क्या होगा कॉन्केव लेंस का? जहाँ भी हमको डिमनिश, हाईली डिमनिश इमेज का फॉर्मेशन करना हो, या फिर डिमनिश इमेज का वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए, डिमनिश इमेज चाहिए, तो हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? कॉन्केव लेंस का। और इसका सबसे बड़ा यूज है मायोपिक डिफेक्ट को, टू करेक्ट द मायोपिक डिफेक्ट। देखो हम डिस्कस करेंगे, इसका फोकल लेंथ निगेटिव का पावर भी निगेटिव होता, कॉन्केव लेंस का पावर निगेटिव होता। ये साइन कन्वेंशन के बाद वाले क्लास में ये डिस्कस किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को समझने के लिए। तो मायोपिया का कॉज है इंक्रीज इन द पावर ऑफ आइलेंस, इंक्रीजमेंट इन द पावर ऑफ आइलेंस कॉज मायोपिया। तो पावर को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्केव लेंस का। तो यहाँ पे इसका सबसे प्रोमिनेंट यूज़ क्या है कॉन्केव लेंस का? इट इज यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिक डिफेक्ट। एंड बहुत सारा यूज़ मैं बुक में लिखा, तुम लिखो। 2 पार्ट बचा है, 3 पार्ट इनफैक्ट, एक साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस का, एक साइन कन्वेंशन कॉन्केव लेंस का, और एक पावर ऑफ लेंस। बाकी थ्योरी खत्म हो चुका, साइन कन्वेंशन अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। पढ़ो अच्छे से। थैंक यू।